80% of our population is deficient in micronutrients. Fiber में 70% people are deficient in fiber. And then protein, 68% of our people are not getting enough protein in spite of eating good amount of quantity of protein. Where is a typical Indian thali going wrong according to you? जो अर्बन हायर इनकम बच्चे हैं as compared to रूरल बच्चे, right? The deficiency is higher. In urban? In urban higher income household kids. But actually वहाँ पे deficiency ज़्यादा है. So वो income wise rich है, but nutrient wise वो actually poor है. There are 100 problems. But the moment health becomes a problem, all the other problems take a backseat. What prompted you to start a brand like Good Monk where you are solving for nutrition and protein intake in regular daily lifestyle? It started when I was watching my own son during COVID. उसकी health पे काफ़ी impact आना शुरू हो गया. We saw that उसको body pain होने शुरू हो गए, खेल के आता था शाम को तो या एनर्जी कम रहने लग गई या अक्सर बीमार रहने लग गया. So I remember that one fateful evening, Saiba, my wife, she out of frustration said कि यार इनके खाने में कुछ डाल दो जो इनको पूरी न्यूट्रिशन दे दे और इनको पता ना चले, है ना? खाने में मिक्स करो, न्यूट्रिशन फिक्स करो. मेरे को लगता है जो एक बहुत फंडामेंटल जो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है विच इज़ अबाउट दी शुगर ड्रिंक्स. वी आर बेसिकली digging our own grave. There are enough number of role models which are talking and selling those categories. Where is the role model who is selling buttermilk and coconut water and नींबू पानी, right? ये सोचने वाली बात है. The worst thing to anybody, right, can be कि उनके parents, की life तो लंबी हो रही है, लेकिन a large part of their life is actually when they are unhealthy. Amar, how are you feeling? I'm feeling great, Deepak. आप बताइए, how are you feeling? Good. Had a very healthy breakfast with some chai on the side. What did you have for breakfast? I had poha with some peanuts and a couple of boiled eggs. Boiled start eggs. my day, yeah. Lovely. Is this your normal routine या फिर usually change होता है on a daily basis? I typically keep eggs as a constant part of my morning breakfast. उसके साइड में सब कुछ चेंज होता रहता है. So प्रोटीन के साथ चीजें इर्द गिर्द मूव अराउंड करती है. बिल्कुल बिल्कुल. Lovely, lovely. सबसे पहले तो I first saw you on the pitch, Shark Tank season 4. Great pitch, by the way. So did you learn communication in a certain way? Where did that confidence come from? नहीं यार, I mean, मैं जोकिंगली काफ़ी कई बार बोला है, मैंने कहा शायद बचपन में एक्टिंग का बड़ा शौक था, कभी मौका नहीं मिला तो शार्क टैंक पे मौका मिल गया. या नो, वी डिड प्रिपेयर अ लिटिल बिट, राइट, पर से, बट ऐसा कुछ प्रोफेशनल कुछ नहीं. Actually the story which we put out was a genuine authentic story. तो मतलब जब अपनी story if you're living through every day, right, so it was easy to kind of act it out. Yeah. Interesting. Firstly, congratulations on the award. The ET Times में आपने एक award जीता है, so congratulations on that. Thank you. A little about, we want to start today's conversation, and this is just context for the audience. We want to talk about the entire nutritional market and a bit of a problem that's happening in the entire nutritional intake in our bodies in today's time and age, especially in the Indian context, क्योंकि खाना तो हम खा रहे हैं, लेकिन उसकी जो न्यूट्रिशनल एफिशिएंसी है, उसका जो पहले हम कैलोरी डेफिसिट में थे, अब हमारा कैलोरी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है इन टर्म्स ऑफ आवर डाइट. तो कितना प्रोटीन होना चाहिए, कितना कार्ब्स होना चाहिए, कितना फैट होना चाहिए, कितना फाइबर होना चाहिए, ये जो मिक्स है ये शायद बहुत सारे हाउस होल्ड ध्यान नहीं देते हैं, स्पेशली पेरेंट्स, विच वी वांट टू टॉक अबाउट. तो स्टार्टिंग ऑफ एज अ कॉन्टेक्स्ट, स्पेशली फॉर द ब्रांड दैट यू आल्सो रन, व्हिच इज गुड मंक, tell me the kind of problem that you see in today's nutrition market. What's the problem that you see and what made you figure out कि यार इतनी बड़ी प्रॉब्लम है. प्रोडक्ट्स अभी भी बहुत सारे हैं, बट हाउ डिड यू सॉर्ट ऑफ थिंक कि यार ऐसा कुछ प्रोडक्ट होना चाहिए which makes it easier for consumption for the Indian market. So again, what's the problem you see in today's nutrition market? What's going wrong? Yeah. So I think Deepak, one of the things जो हम लोग को realization ये हुआ कि इंडिया में आज हम fortunately
इनफ कैलोरीज खा रहे हैं. हमारी हाँ. जो पूरी पॉपुलेशन है, एक ज़माना था कि हम वी वर नॉट एबल टू ईट इनफ कैलोरीज विच वर रिक्वायर्ड इन टू सस्टेन आवरसेल्व्स इन अ डे. द गुड थिंग इज हम कैलोरीज खा रहे हैं, सो वी हैव एक्चुअली प्रोग्रेस्ड एज ए नेशन, राइट. लेकिन नाउ व्हेन यू गो एंड अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट मोर इन डिटेल, तो उसमें आ रहा है कि हम जो कैलोरीज हैं वो शायद ठीक नहीं खा रहे हैं. दैट इज़ द रीज़न कि हम लोग अगर आप देखो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में, तो 80% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज डेफिशिएंट इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. 80%, राइट. मतलब तो 4 में से 5 लोग आर नॉट हैविंग द राइट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. फाइबर में 70% पीपल आर डेफिशिएंट इन फाइबर. तो हम खा रहे हैं खाना, राइट, लेकिन हम इनफ फाइबर नहीं खा रहे हैं. एंड दैट इज द रूट कॉज ऑफ सो मेनी गट हेल्थ रिलेटेड इश्यूज विच आर देयर. And then protein, 68% of our people are not getting enough protein in spite of eating a good amount of quantity of protein. And this is both for vegetarians and non-vegetarians. Yes, this is, at That is surprising. that is at an overall, average level. And this is all data which has been published by ICMR, right? So there is enough depth and width of, capture of the Indian population there. एंड द मेन थिंग विच इज़ हैपनिंग इज़ कि ये जो इम्बैलेंस है हमारे अपनी डाइट में, राइट. जैसे मैंने बोला कि कैलोरीज तो इनफ खा रहे हैं, लेकिन ये की न्यूट्रिएंट्स हमारे को नहीं मिल रहे हैं. उसका मेन कारण है कि हम लोग बहुत ज़्यादा कार्ब्स हेवी डाइट खाते हैं, राइट. हमारे को नॉर्मली 45% तक अपना जो ओवरऑल कैलोरीज कार्ब्स से आना चाहिए, हमारा वो 65% तक आ रहा है, राइट. एंड उसका कोर रीज़न है कि हम लोग, अगर आप मेरे से पूछें, तो एक आटा और राइस, राइट, इसका कंजम्पशन हम ज़्यादा करते हैं. और बाकी जो हमारी थाली का पार्ट होती हैं चीज़ें, जैसे कि वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गए, डेयरी हो गया, पनीर हो गया, राइट, एग्स हो, उसका क्वांटिटी कम है. सो वी आर मच मोर सीरियल हैवी दैन एनीथिंग एल्स, राइट. सो दैट्स वन बिग पार्ट ऑफ द चैलेंज जो हमने देखा मार्केट में. बट आई ऑल्सो वांट टू जस्ट टेक यू बैक लिटिल बिट इनटू हिस्ट्री इसके अंदर, बिकॉज व्हेन we started to research about this, and बड़ा fascinating है, food is at the heart of what we are, right? Of course. तो especially इंडिया में तो खैर खाना इतना डाइवर्सिटी में मिलता है. आप किसी भी रीजन में चले जाओ, बिल्कुल, कलकत्ता में पुचका खा लो या दिल्ली में गोलगप्पे खा लो या मुंबई में पानी पूरी खा लो. देयर इज अ डिफरेंट वे ऑफ मेकिंग सर्टेन फूड एवरीवेयर यू गो. बिल्कुल. और खाने के बारे में बात करना तो मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि मेरे को पानी आता है तुरंत. तो आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. बट हाँ, लेट्स गो अ लिटिल बिट इनटू हिस्ट्री in terms of how food was earlier and how the kind of food that we get right now. Yeah. So, इसी space के अंदर one of the things which when we were studying about it, हम लोगों को पता चला कि अगर आप 50-60 साल पहले जाएंगे, तो जो इंडिया के अंदर जो ईटिंग हैबिट्स थी वो बड़ी डिफरेंट थी, राइट. एंड बिकॉज लेकिन वो जो हमारा प्रोडक्ट का, जो हमारा क्रॉप्स का प्रोडक्टिविटी था वो कम होता था, राइट. तो इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया तो उसके अंदर ये गवर्नमेंट का फोकस हुआ कि यार वी शुड हैव मोर एफिशिएंट क्रॉप्स, राइट, जैसे वीट, राइस वर्सेस मिलेट्स एंड सम ऑफ द अदर ग्रेन्स एंड पल्सेस व्हिच यूज्ड टू बी देयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. करेक्ट. तो उससे एक चीज़ तो बहुत अच्छी सॉल्व हुई कि हमारे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, राइट. फ्रॉम अ नेट इम्पोर्टर as a country, we became a net exporter of all of these crops per se, and that's a great win for the country. But unfortunately, इन सब चीज़ों की जो nutritive value होती है, right, as compared to some of those, other grains and pulses, is much lesser, right? And that is one of the core reasons why India is facing this crisis today of being nutrient deficient, right? So that's one thing. दूसरा, एक और स्टडी हुई जहाँ पे उन्होंने ये चेक किया कि जो राइस और वीट आज से 50-60 पहले होता था, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या होती थी और आज क्या न्यूट्रिटिव वैल्यू है उसकी. वहाँ पे भी ये पता चला कि 35 to 50% माइक्रोन्यूट्रिएंट लेवल्स ऑफ लेट्स से आयरन और जिंक इन क्रॉप्स के अंदर पहले से कम हो चुका है. 40-50%? हाँ जी, बिल्कुल. दैट इज अ क्रेजी नंबर. तो ये कैसे हुआ, ये क्यों कम हुआ, कैसे हुआ? ये देखिए, बेसिकली इट्स ऑल अबाउट द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, राइट. हम इतना ज़्यादा फर्टिलाइजर डाल रहे हैं टू काइंड ऑफ इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉइल, राइट. तो वो उतना पेस से नहीं होता है. दूसरा चीज़, इन्वायरमेंट का भी एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है ऑन टू क्रॉप्स, राइट. सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जिसकी वजह से ऐसा हुआ है. बट दिस 35 to 50% न्यूट्रिएंट वैल्यू, इसका मतलब जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि यार जो खाना हम खाते थे, राइट, और जो खाना आज मिलता है उसमें बहुत फ़र्क है.
एक्चुअली उसके अंदर काफ़ी साइंटिफिक ट्रूथ है. अच्छा अच्छा. और ये भी होता है ना कि गांव में जो हम खाना खाते हैं, देयर आर सो मेनी मोर पीपल हु आर मच मोर हेल्दी Yeah. एंड फिट Yeah. in villages and tier 2 tier 3 cities than in tier 1 cities. Yeah. Is it because sedentary lifestyle है या nutrition का भी? I'm sure there's a big role to play Yeah. in the entire calculation. Yeah. No, so इसके अंदर तो I mean I always start with saying कि अगर आप अपना urban lifestyle देखो और एक rural lifestyle देखो, right? तो rural lifestyle के अंदर मतलब the amount of physical activity which a sedentary man will do or a woman will do, right? वो पानी लेने के लिए जा रहे हैं, वो खेतों में जा रहे हैं, right? वो hills पे चढ़ के जा रहे हैं. As compared to what we do, हम लोग उठते हैं, सुबह सब लोग नहाते धोते हैं, तैयार होते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, घर आते हैं, राइट? सो जो हम लोग का लाइफस्टाइल है ना, चाहे वो एडल्ट्स का हो चाहे बच्चों का हो, राइट? I think the physical movement which people in rural parts of the country have versus urban is quite different. In fact, there was one data which I had seen recently, जहाँ पे उन्होंने बच्चों के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का एनालिसिस किया था, एंड दे फाउंड दैट जो अर्बन हायर इनकम बच्चे हैं एज कंपेयर टू रूरल बच्चे, राइट, द डेफिशिएंसी इज हायर in urban higher income household kids, which is so surprising, right? Because you assume that कि जो ज़्यादा एजुकेटेड लोग होंगे, जो ज़्यादा थोड़े से ये अच्छा खाना अफोर्ड कर सकते होंगे, वहाँ पे तो डेफिशिएंसी कम होनी चाहिए, बट एक्चुअली वहाँ पे डेफिशिएंसी ज़्यादा है. सो वो इनकम वाइज रिच है बट न्यूट्रिएंट वाइज वो एक्चुअली पुअर है, right? And it is all linked to a lot of the sedentary lifestyle, lot of eating out, lot of packaged food consumption, not eating at home enough per se. So partly ये food का quality deteriorate हुआ है, but partly it is also about how we have responded as a society. And also like how have food habits changed over time? Because पहले I'm sure I'm in my late 20s. There are, and I can talk about my parents who are elderly and talk about my grandparents who are much fitter in terms of the food that they eat, and they've survived for very long because of the food that they've eaten for so many years. Today there's so much. I live in a city like Mumbai, जहाँ पे पीक अर्बन सिटी है, जहाँ पे कुछ भी अगर अवेलेबल हो, कुछ भी खाना हो, तुरंत स्विगी जोमेटो से मिल जाता है, सब कुछ ऑर्डर हो जाता है. तो कहीं ना कहीं वो न्यूट्रिएंट वैल्यू, एंड द थिंग इज इट्स ऑल्सो नॉट अबाउट मी बीइंग इन माय 20s. आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड बिकॉज आई एम मच मोर अवेयर, मोस्ट ऑफ माई टाइम गोज ऑनलाइन, तो मुझे पता है कि चलो कितना कंटेंट बन रहा है अराउंड न्यूट्रिशन, अराउंड प्रोटीन, बट बहुत लोगों को शायद पता ही नहीं कि हमें कितना खाना चाहिए. सो what prompted you to start a brand like Good Monk where you are solving for nutrition and protein intake in regular daily lifestyle? What was that trigger? Was there a story involved, or what was it that was there? So Deepak, actually ये घर से start हुआ है, and it started when I was watching my own son during COVID, right? At that point of time he was just entering his teenage years, and वो 13 साल का था, and I just saw that कि कितनी इम्बैलेंस ईटिंग हैबिट्स हैं बच्चों की एट दैट एज, राइट? गिव मी एन एग्जांपल. या सो आई मीन दे द होल थिंग अबाउट स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, जेप्टो, वो लोग वहाँ से ऑर्डर करते हैं, राइट? मील्स के बीच में जो उनकी स्नैकिंग होती थी, उसकी वजह से उनको भूख नहीं लगती है. जब खाना आता है सामने तो उनको भूख नहीं लगती है, राइट? एंड सो दैट वाज वन थिंग व्हिच वाज बॉदरिंग अस अ लॉट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड वी वर वेरी वरिड एज पेरेंट्स. तो टिपिकली क्या होता है कि यार जब आप वरिड होते हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हो, उनसे रिकमेंडेशन पूछते हो कि क्या करना चाहिए. सो सबका यही था कि भाई अगर बच्चे ठीक से नहीं खा रहे हैं तो उनको कुछ सप्लीमेंटेशन दीजिए एक्सेट्रा. बट द चैलेंज क्या था कि जो मार्केट में सप्लीमेंट्स अवेलेबल थे, वी सॉ लॉट ऑफ देम, वी ब्रॉट देम होम, वी ट्राई टू गिव इट. तो या तो उनका बड़ा मेडिसिनल टेस्ट था कि बच्चे लेना नहीं चाहते हैं, या फिर उसके अंदर नाम तो सप्लीमेंट का है लेकिन शुगर इतनी ज़्यादा है कि लगता है यार कि वो मतलब हम उनका भला करने जा रहे हैं या हम उनको और नुकसान कर रहे हैं उनके लिए. So I think that was the crisis as parents we were going through, right? Which I am sure, if there are some parent who are watching, most of them will relate to this problem, right? कि बच्चों को हेल्दी देना चाहते हैं
लेकिन बच्चों की जो हैबिट्स हैं आजकल आर have changed or deteriorated, I would say, significantly. So we were going through a similar crisis. But then what happened that during COVID उसकी हेल्थ पे काफ़ी इम्पैक्ट आना शुरू हो गया. We saw that उसको बॉडी पेन होने शुरू हो गए, खेल के आता था शाम को तो, या एनर्जी कम रहने लग गई, या अक्सर बीमार रहने लग गया. So that's when we said कि यार we have to take a little bit of a more serious stance at this, right? तो हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ना शुरू करा और ज़्यादा, राइट? हम लोग मतलब वी डिडंट क्या होता नहीं कि हम एक्सपर्ट के पास जाते हैं, उससे आंसर लेते हैं. वो अप्रोच से हमने कहा नहीं यार, ये प्रॉब्लम हमको खुद समझनी पड़ेगी पहले एज पेरेंट, तभी हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं. तो यही रियलाइज़ हुआ कि ये जो न्यूट्रिशन का गैप जो क्रिएट हो रहा था, दैट वाज द मेन रीज़न विच वाज कॉजिंग ऑल द सिम्टम्स विच वी वर सीइंग, राइट? एंड ये एक्सटर्नल सप्लीमेंटेशन काम नहीं कर रही थी. तो आई रिमेंबर दैट वन फेटफुल इवनिंग, साहिबा माई वाइफ, शी आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ना जैसे वो जब होते हैं पेरेंट्स बच्चों के लिए परेशान होते हैं, आउट ऑफ दैट फ्रस्ट्रेशन शी इन दैट मोमेंट सेड कि यार इनके खाने में कुछ डाल दो जो इनको पूरी न्यूट्रिशन दे दे और इनको पता ना चले, राइट? बिकॉज द बिगेस्ट चैलेंज वाज कि जैसे ही बच्चों को पता चलता था कि आपने कुछ डाला है जिसका टेस्ट चेंज हो गया, दे विल नॉट हैव इट, राइट? सो दैट इज वेयर दिस इनसाइट कि यार खाने में मिक्स करो और न्यूट्रिशन फिक्स करो एक तरीके से, राइट, स्टार्टेड. एंड दैट्स वेयर द जर्नी फॉर गुड मंक. ये मेरे को पिच की तरह लग रहा है आपका कि खाने में मिक्स करो, न्यूट्रिशन फिक्स करो. इज दिस द पार्ट ऑफ योर? या इट वाज वन ऑफ दोज लाइंस जो हमने कंज्यूमर को बोली और कंज्यूमर ने बोला यार ये तो बिल्कुल सही बात है यार, है ना? खाने में मिक्स करो, न्यूट्रिशन फिक्स करो. बट आपको लगता है अमर कि इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है? कंसिडरिंग इतने प्रोडक्ट्स बाहर है, इतनी इंफॉर्मेशन बाहर है, ऑलरेडी सो मच कंटेंट इज देयर, सो मच इंफॉर्मेशन इज आउट देयर कि यार कितना न्यूट्रिशन खाना चाहिए, हेल्थ प्रॉब्लम कितनी है, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम कितनी है. वी स्पोक अबाउट हिस्टोरिकली आल्सो कि 68% पीपल आर नॉट कंज्यूमिंग इनफ प्रोटीन डिस्पाइट बीइंग नॉन वेजिटेरियंस, जबकि मीट के थ्रू तो प्रोटीन इंटेक फुल होनी चाहिए. तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी प्रेवलेंट है. What do you think? Where do you think the real problem lies? Is it implementation only? I think the main challenge, Deepak, is about कि as a society, हम क्लेम करते हैं कि यार हम हेल्दी खाना चाहते हैं, लेकिन मतलब अगर आपके सामने ऑप्शन हो एक चीज़ टेस्टी और एक चीज़ हेल्दी, हमें पता है हमारा आंसर 9.9 टाइम्स क्या होने वाला है, राइट? इसको अगर एग्जांपल से एक्सप्लेन कर दिया जाए. हाँ, तो आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, राइट? जैसे मेरा एक फ्रेंड है, वो कहता है कि यार मैं आजकल बड़ा हेल्दी खा रहा हूँ. तो मैंने कहा क्या खा रहा है तू आजकल मैं लौकी खाना बड़ा शुरू कर दिया है. मैं कहा लौकी कैसे बनाता है? कहता लौकी के कोफ्ते खाता हूँ मैं. डीप फ्राई करके. हाँ, डीप फ्राई करके, मलाई डाल के, बटर डाल के. तो मैं कहता हूँ भाई तू बोल रहा है कि तू लौकी खा रहा है, ग्रीन वेजिटेबल खा रहा है, लेकिन तू जिस फॉर्म में खा रहा है वो तो इतना ज़्यादा रिच ग्रेवी का फॉर्म है कि उसका फ़ायदा तेरे को नहीं मिलेगा, राइट? सो एट द एंड ऑफ द डे दैट इज़ who we are at the heart of it, right? तो आई थिंक जो इम्प्लीमेंटेशन का बैरियर क्या है कि हम लोग कंज्यूमर से बहुत चेंज एक्सपेक्ट करते हैं, राइट? हमको न्यूट्रिशन को आसान बनाना है, राइट? हमारे को लोगों को ऐसे सिंपल प्रोडक्ट्स देने हैं, ऐसे सिंपल हैक्स देने चाहिए जिससे कि न्यूट्रिशन इतना भारी भरकम ना लगे. आई रिमेंबर मैं एक बार एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास गया था अपने आप के लिए कुछ गाइडेंस लेने के लिए, काफ़ी साल पुरानी बात है. एंड उन्होंने मुझे एक डाइट प्लान दिया था, और वो जब मैं घर आके मैंने वो डाइट प्लान मेरी वाइफ को बताया कि ये इम्प्लीमेंट करना है, तो उनको लगा कि यार इसको एक डाइट प्लान इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग से कुक चाहिए, राइट? सो नाउ हाउ प्रैक्टिकल इज दैट, राइट? इट इज़ वेरी इम्प्रैक्टिकल. इज इट फेयर मॉन्गरिंग? मतलब क्या ये परसेप्शन है कि न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना, क्या ये डरावना कर दिया गया है सोसाइटी के लिए या इंडियंस के लिए कि यार न्यूट्रिशनिस्ट के पास जा रहे तो क्या हम बीमार हैं? या अगर न्यूट्रिशनिस्ट को डाइट प्रिस्क्राइब कर रही है या कर रहा है तो क्या वो एक दवाई की तरह लिया जाए? नहीं, आई डोंट थिंक सो. द सिचुएशन इज एज ग्रिम एज दैट. आई थिंक इन फैक्ट न्यूट्रिशनिस्ट के पास लोग आजकल और ज़्यादा जाना शुरू कर गए हैं बिकॉज लोगों को अवेयरनेस काफ़ी बढ़ गया है, करेक्ट, राइट? सो आई वुड से दैट देयर इज़ अ वेरी पॉजिटिव चेंज विच इज़ हैपनिंग कि लोग अवेयर हैं, लोग चाहते हैं हेल्दी खाना, एंड लोग जा रहे हैं. आई थिंक माई ओनली इंसाइट इन दैट इज़
कि वो जो रिकमेंडेशंस आती हैं, राइट, या वो जो प्रोडक्ट सॉल्यूशंस बनते हैं वो आसान कैसे हों डेली लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करने के लिए, ताकि न्यूट्रिशन एज अ कॉन्सेप्ट एक एलीट कॉन्सेप्ट ना बना जाए, वो एक स्मॉल माइनॉरिटी के लिए ना हो. देखिए फाइनली जो भी अगर एक लार्ज स्केल आप पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि मासेस उस चीज को इम्प्लीमेंट करें, नॉट जस्ट 1% और 2%, राइट. Correct, तो agreed. सॉल्यूशंस ऐसे आने चाहिए. So, where are households going wrong? Is it the diet? या डाइट पता है उन लोगों को और वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे? It's like getting a gym membership for a year and spending 30-40,000 at least in an urban city like Bombay, spending 30-40,000 a year, and then going for 2 days a week. I think when it comes to diet at a family level, it's a combination of both, right? देखिए हमारा जो ट्रेडिशनल विजडम है, राइट, किचन के अंदर जो मदर के पास होता है, I mean that is very significant, right? And we have to respect that. The mother knows what is healthy to be given to her family a lot of times, right? Correct. So, but I think what the pressure she is facing, right? And हम लोगों ने बहुत पेरेंट्स से बात किया. We went and met a lot of mothers across the country, right? I think what we are learning is that they are facing a significant headwind from the family when it comes to family nutrition, right? क्योंकि इतने alternatives हैं जो बाहर मिल रहे हैं, जो टेस्टी हैं, पैकेज फूड्स हैं, राइट, इजी एक्सेस है. उसकी वजह से मदर चाहे अच्छा बना भी रही है, राइट, वो बच्चों को या फैमिली को खिला नहीं पा रही है, राइट. सो ये एक ऐसा सिचुएशन पहुंच गई है कि मदर हैज टू नाउ गेट स्मार्टर than the kids or the husband and the family, right? परेशान भी है ना. हाँ. Mothers are also very परेशान in terms of कि यार बच्चा पूरे टाइम इंटरनेट पे है, यूट्यूब पे है, इंस्टाग्राम पे है, तो वो पूरे टाइम स्क्रॉल कर रहा है, बिल्कुल, या कर रही है, तो उसको पता है कि यार and there are a lot of these tasty recipes, a lot of these creators create, and I don't have any vengeance towards any creators, but again a lot of people, how you see these tasty recipes जहाँ पे पता है कि यार पिज्जा को ऐसे बनाया जाए, पास्ता को ऐसे बनाया जाए, तो बच्चा को तो वही चाहिए. सही बात है. बट चैलेंज वाइज उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए? व्हाट हैव यू डन एज अ ब्रांड दैट प्रॉब्ली मी एंड द एंटायर ऑडियंस कैन लुक फॉरवर्ड टू? सो जब हमारे को ये इंसाइट आया कि ये टेस्ट और हेल्थ का जो फाइट है, राइट, आप जीत नहीं सकते, राइट, क्योंकि आप कुछ भी बोलिए, फैमिलीज को टेस्ट चाहिए. हाँ, सही बात है. एंड व्हाई नॉट, राइट? मतलब because to expect the large and mass to suddenly become that aware and make hard compromises is मतलब शायद टाइम लगेगा. वो तो रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं. वो तो शायद मेरे हिसाब से पॉसिबल, मतलब पॉसिबिलिटी को नेगेट नहीं करना चाहिए, नेवर से नेवर, बट कहीं ना कहीं इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ओनली. कम ऑन, हु आर वी किडिंग? तो इसलिए वी सेड कि यार हमारे को ना, हमको एक ऐसे सॉल्यूशंस बनाने हैं जो कि इस कंस्ट्रेंट एनवायरनमेंट के अंदर काम करें, राइट, जो कि एक आम कंज्यूमर को अपना बिहेवियर चेंज करने के लिए प्रोवोक ना करें. दैट इज वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड मंक केम थ्रू, वेयर गुड मंक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, फाइबर, प्रोबायोटिक्स, ट्रेडिशनल इंडियन हर्ब्स, एंड द मैजिक इज कि आप उसको अपने खाने में डालिए, राइट. आप जो भी खा रहे हैं, आपके खाने का टेस्ट, कलर और स्मेल चेंज नहीं होता है. अच्छा, तो इट्स पाउडर? यस, इट्स पाउडर. आप अपने खाने में डालिए. एंड मतलब द वे वी यूज्ड टू से इज कि हम न्यूट्रिशन आपके खाने में स्मगल कर रहे हैं, राइट, कि आपके बच्चे को या आप कोई भी ऐसा जो घर में फसी ईटर है, उसको पता नहीं चलेगा कि आपने इतना न्यूट्रिशन डाला है. एंड आपको दिन में 30 to 50% ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे विदाउट एनी शुगर, विदाउट एनी आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स और फ्लेवर्स. सो दिस इज अबाउट वर्किंग इन कंस्ट्रेंट, राइट, कि ये कंस्ट्रेंट है और उस एनवायरनमेंट में हम कैसे जीत सकते हैं. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट वेयर इट स्टार्टेड. एंड लुकिंग एट द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स विच वी हैव गॉट, आई थिंक ये एक रेवोल्यूशन तो चालू हो गई है, विच इज अबाउट फोर्टिफाइंग योर डेली फूड. एंड ओके, गिव मी लाइक अ इंस्टेंस जहाँ पे आपको लग रहा है कि अगर मैं दाल चेंज कर दूं या राइस चेंज कर दूं, व्हाट आर प्रॉब्ली एक टिपिकल इंडियन थाली इमेजिन करते हैं, ठीक है, जहाँ पे रोटी सब्जी दाल चावल. हाँ जी. वेयर इज अ टिपिकल इंडियन थाली गोइंग रॉन्ग अकॉर्डिंग टू यू? आई थिंक जो एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम डेटा, राइट, NIN का डेटा है
जहाँ पे वो रिकमेंड करते हैं कि आइडियल थाली का क्या पोर्शन होना चाहिए, राइट? तो जो सबसे पहली चीज़ जहाँ पे हमारी गलती हो रही है इज़ द बैलेंस बिटवीन सीरियल्स एंड पल्सेस। अच्छा। तो सीरियल्स मतलब जैसे हमारा आटा या चावल हमारा कितना होना चाहिए और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमारी पल्सेस कितनी होनी चाहिए, विच इज़ दाल एंड लेग्यूम्स एक्सेट्रा। तो जो रिकमेंडेड पोर्शन है वो 3:1 का है। 3 dal and 1 नो 3 cereals 3 cereals and and 1 portion of dal, Okay. right? लेकिन अनफॉर्चुनेटली विच बेसिकली कन्वर्ट्स इनटू कि आपको 45% ऑफ योर जो कैलोरीज हैं वो आप सीरियल से ले सकते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है हम सीरियल से 65% कैलोरीज ले रहे हैं। तो अगर एक बहुत बेसिक चीज़ बोली जाए तो हम आटा और चावल ज़्यादा खा रहे हैं, एंड जो रिचर स्टफ है हमारी थाली का पार्ट विच इज़ वेजिटेबल्स, दाल, डेयरी, पनीर एक्सेट्रा, वो हम कम खा रहे हैं। तो अगर हम एक बेसिक सिंपल सा शिफ्ट कर लें, राइट, कि ये जो बैलेंस चीज़ों को हम बढ़ा दें और आटा और चावल को थोड़ा कम कर दें, आई थिंक इट विल सॉल्व मल्टीपल पार्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम। और टेस्ट वही हम मेंटेन कर रहे हैं। तो इसके अंदर यही है कि भाई आप, क्योंकि हमारे को एक आदत पड़ चुकी है, राइट, आटा और चावल ज़्यादा खाने की, तो और आप जब दाल और सब्जी ज़्यादा डालोगे तो आपको लगेगा कि थोड़ा टेस्ट में तो चेंज आ रहा है पैटर्न के अंदर, बट अगर वो स्लोली आप उसको ग्रेजुअली अपना बैलेंस को चेंज करें तो मैनेज हो सकता है। How big of a problem is this? Is this the problem of, clearly this is not the problem of information. Yeah. ऐसा तो नहीं है कि हम अवेयर ही नहीं है। Yeah. इतने सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं आजकल। Right. Hospitals are probably overbooked. Yeah. Unfortunately. And ये भी कई बार हम कहा जाता है कि there are 100 problems. Yeah. And but the moment health becomes a problem, all the other problems take a back seat. तो ऐसा तो नहीं है कि इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। With terms of, in terms of implementation becomes easier. The idea is to make implementation much easier. And that's where I think your brand comes into picture, जहाँ पे स्मगल कर दिया जाए कि आटे में डाल दो या खाने में डाल दो। So maybe what are some of the tweaks that an Indian kitchen can make in their daily diet, so as to gain more nutrition and make it like while maintaining the taste of the food? Yeah, I think देखिए हमारा खाना इतना डाइवर्स है, राइट? अगर हम थोड़ा सा कॉन्शियस होके ये इम्प्रूवमेंट्स करें तो मैं बोलूँगा ये 3-4 चीज़ें हैं जहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। पहला चीज़ है कि प्रोटीन को अपने डाइट का रेगुलर पार्ट बनाना चाहिए। प्रोटीन इज़ नॉट ओनली फॉर लार्ज मील्स कि मैं जब डिनर करूँगा तभी प्रोटीन लूँगा। आप अपने ब्रेकफास्ट के अंदर प्रोटीन को कैसे इंक्लूड कर सकते हो, आप अपने लंच में प्रोटीन को कैसे इंक्लूड कर सकते हो, स्नैकिंग में प्रोटीन को कैसे, एंड बहुत सारे सोर्सेज हैं, डेयरी सोर्स है, आपके नट्स आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन, राइट, एग्स एंड नॉन वेज तो है ही है, राइट? सो लुक एट मल्टीपल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन एंड स्टार्ट इनकॉर्पोरेटिंग दैट थ्रू द कोर्स ऑफ द डे, राइट? दैट इज़ वन चेंज, राइट? एंड इनफैक्ट ये चीज़ें डालने से आपका खाना और टेस्टियर ही हो जाएगा, राइट? सो चेंज होगा बट टेस्टियर हो जाएगा। द अदर इज इम्प्रूव द अमाउंट ऑफ फाइबर विच वी नीड टू टेक। उसके लिए एक सिंपल चीज़ है, अगर आप वेजिटेबल्स को ज़्यादा अपना खाने का पार्ट बना दें, राइट, फ्रूट्स को अपने खाने का पार्ट बना दें, राइट, तो उसकी वजह से आपका फाइबर का इनटेक इम्प्रूव हो जाएगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो आपका अगर गट हेल्थ ठीक नहीं है, दैट इज़ अदर बिग चैलेंज विच इज़ हैपनिंग इन द कंट्री, राइट, कि हम लोगों का न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन की जो बिकॉज ऑफ ऑल द प्रोसेस्ड एंड रिफाइंड फूड विच वी आर ईटिंग, राइट, इतना रिफाइंड फ्लावर हो रहा है, इतना पैकेज फूड खा रहे हैं, तो हमारा गट ही ठीक नहीं है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो एल्डरली हैं, चाहे वो अडल्ट्स हैं, राइट? सो हैविंग द राइट फाइबर इनटेक will definitely help, and that tweak we should definitely try and do. The third, जैसे मैंने पहले बताया था, balanced between cereals and pulses, right? अगर हम वो 3:1 का रेशो को अपने लाइफ का एक पार्ट करना शुरू कर दें, उसकी वजह से भी significant improvement मिल जाएगा हमारे को अपनी न्यूट्रिशन में। So you mentioned about small changes in the breakfast, lunch and dinner. And not looking at it from a larger perspective कि यार सिर्फ डिनर में डालना है या सिर्फ लंच में डालना है। How can kids and how can at large parents incorporate this? क्योंकि पेरेंट्स वाला एंगल बड़ा इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे वो 45, 50 प्लस वाले लोग हैं जिनको शायद दे माइट ऑल्सो कम फ्रॉम प्लेस ऑफ अनअवेयरनेस कि कितनी प्रोटीन जानी चाहिए बॉडी में एक्सेट्रा एक्सेट्रा एट दैट पर्टिकुलर एज। पहले तो थोड़ा सा ये आप बताओ कि वो कैसे
change होता है body from a 20-30 year old person to a 45-50 year old person? How does the nutritional deficiency change? Yeah. No, that's a very important question, right? Because I think that is one area जहाँ पे lot of research is happening, a lot of interest is there. देखिए आज के केस में क्या है कि इंडिया में 50 प्लस का जो पॉपुलेशन साइज है, आई थिंक क्लोज टू 25 करोड़ लोग हैं, राइट? अगले 4 से 5 साल के अंदर कहते हैं कि 30 करोड़ लोग से ज़्यादा पॉपुलेशन, या एंड एंड दे आर वेरी वेल टू डू इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, राइट? बिकॉज दे आर एजुकेटेड, लोगों ने काम किया है, बिजनेसेस बिल्ड करे हैं, राइट? सो इट्स अ वेरी बिग मार्केट, and more importantly it's a educated audience per se. But I think कि वो लोग अभी भी न्यूट्रिशन पे उतना ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि they have run their life trying to take care of their family in that sense. So पहला बड़ा जो change है is that this part of the market should start taking care of their own health, right? और उसमें सबसे बड़ा catalyst होगा उनके बच्चे, right? So what we have seen in a lot of our consumer work, etc., is that we have seen that the kids of these 50 plus people are actually pushing their parents to eat more healthier, are actually saying कि नहीं यार आपको अपना केयर करना चाहिए, अब आप हमारा केयर मत करो, right? खाली आप हमारी चिंता मत करो. So this reverse parenting as a concept, right, is starting to kind of pick up. I love that. Yeah. I love that. Yeah. I would want to probably be very strict with my parents कि यार सुनो आपने जीवन भर डांटा मेरे को, अब मेरी बारी है डांटने की, चुपचाप ये खाओ, ठीक है ना? Yeah. And therefore one of the things we have learned is that if you tell the youngsters कि यार अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो और ये न्यूट्रिएंट्स उनके लिए इंपॉर्टेंट हैं, एंड उनको गाइड करो, that kind of content is doing well, that kind of pitch to this audience group is doing really well. And but वो सब मेरे को एक I'll tell you this story कि अर्ली स्टेज ऑफ आवर ब्रांड बिल्डिंग के अंदर हम लोग कई बार स्टॉल्स लगाते थे ब्रांड के लिए, राइट? एंड हम खड़े होते थे वहाँ पे, तो कई लोग आते थे, बात करते थे, एंड दे वुड एंगेज अराउंड गुड मंक, एंड सो वन ऑफ द थीम्स व्हिच ऑलवेज केम बैक एंड सेड वाज कि सर आपने ना ये ब्रांड बनाया था, ये आपने बच्चों के हिसाब से बनाया था कि बच्चों के खाने में स्मगल कर देंगे, बट सर वी आर टेलिंग यू दैट हम ना ये अपने पेरेंट्स के खाने में ज्यादा स्मगल कर रहे हैं, बिकॉज एक्चुअली पेरेंट्स आर ऑल्सो एट आफ्टर अ सर्टेन एज आर इक्वली फसी एंड फिनिकी एज यू सेड दीपक, कि वो लोग भी अपनी हैबिट्स चेंज नहीं करना चाहते हैं, राइट? सो एंड जब हमने ये सुना तो हमने उनके लिए एक एक्चुअली नया प्रोडक्ट बनाया which was catering to the 50 plus audience, which is Good Monk Healthy 50 plus. Same concept, nutrients, essential vitamin, minerals, fiber, probiotics and herbs, and that's doing really really well. So we feel that ये smuggling का जो concept है खाने का, ये एक frictionless concept है, right? इसके अंदर वो लोग क्या बोलते हैं कि यार मैंने अपने किसी घर में मेड को बोल दिया, राइट, कि यार आप आटे में प्रोटीन डाल दीजिए, राइट? 5 किलो आटा है, उसके अंदर इतना प्रोटीन डाल दो. अब रोटी बन के आ रही है, रोटी तो सेम जैसे नॉर्मल रोटी होती है, पेरेंट्स को पता ही नहीं है, राइट? या फिर जब उनके लिए सब्जी परोसते हो तो सब्जी के अंदर गुड मंक का सैशे डाल दो, तो पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि इसके अंदर डाल दिया. तो एसेंशियली दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट सॉल्यूशंस व्हिच हेल्प टू मेक न्यूट्रिशन फ्रिक्शनलेस, इजी. मतलब रेजिस्टेंस थोड़ा कम किया जाए, हाँ जी, फ्रिक्शनलेस किया जाए, थोड़ा फ्रिक्शन कम किया जाए इन टर्म्स ऑफ चेंज. हाँ जी. हाउ कैन वी मेंटेन दैट हेल्दी येट टेस्टी कॉम्पोजिशन ऑफ द फूड इन द घर का खाना इटसेल्फ? सो व्हाट आर सम ऑफ द चेंजेस दैट कैन बी डन इन द घर का खाने की थाली? तो दीपक, मैं कोई न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ, राइट? लेकिन मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ, है ना? तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में मुझे अभी तक जैसे कि द चेंजेस विच आई हैव सीन अराउंड मी, हम लोग जब उठते थे नॉर्मली तो चाय के साथ हम लोगों को बिस्किट या रस चाहिए होता था, राइट? हमने उसको चेंज करके अब मखाने और नट्स एंड सीड्स खाना शुरू कर दिया, राइट? स्मॉल चेंज. दिस इज विद चाय? विद चाय, ओके. लेकिन चाय के साथ जो बिस्किट और नमकीन खाते थे, जिसके अंदर शुगर जाता था, सॉल्ट जाता था, सैचुरेटेड फैट जाता था, उसकी जगह पे अब अगर हम मखाने, सीड्स, ड्राई फ्रूट खा रहे हैं तो मच हेल्दियर फैट जा रहे हैं, राइट? सो दैट इज वन स्मॉल चेंज विच वी हैव डन.
आई नो दैट यू नो मेरे वाइफ जब जैसे बच्चे अगर कभी पिज़्ज़ा की ज़िद करते हैं तो शी विल मेक इट विद मल्टीग्रेन आटा, राइट, बट शी विल मेक द बेस एट होम. बट क्या वो पता चलेगा बच्चों को? तो बेसिकली आप उसके अंदर जो सॉसेज वगैरह लगा रहे हैं, राइट, उसके अंदर जो वेजिटेबल्स या आप उसके जो टॉपिंग्स कर रहे हैं वो इतने अच्छे एक्साइटिंग तरीके से प्रेजेंट करो कि बच्चों को पता नहीं लगता है फिर वो ब्रेड तक जाए ही नहीं कि वो ब्रेड, हाँ, उतना तक सोचे नहीं, राइट. सो दैट्स व्हाट आई सेड अर्लियर, राइट, हाँ. कि जो मदर है आप उसके पास बहुत सारे हैक्स हैं, Correct. राइट, एंड शी हैज द हैक्स. हाँ. वो बस यू नो वी हैव टू जस्ट इक्विप हर, वी हैव टू जस्ट मेक हर अवेयर, राइट, एंड वी हैव टू गेट बेटर एट दैट, राइट. बट तो ये एक जैसे एक एग्जांपल है, और कई सारी चीज़ें छोटी छोटी. मेरे को लगता है जो एक बहुत फंडामेंटल जो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है विच इज़ अबाउट दी शुगर ड्रिंक्स, राइट. मेरा और मेरे बच्चों का तो इसके ऊपर बहुत झगड़ा होता है, राइट, कि भाई आप ये बाहर के कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पियेंगे, ये एनर्जी ड्रिंक्स नहीं पियेंगे, एक्सेट्रा. एंड द रीज़न इज़ कि यू नो बहुत हाई शुगर है, प्रिजर्वेटिव्स हैं, राइट, एंड दे एक्चुअली create actually damage your you know microbiome. जो गट के माइक्रोबायोम है उनको डैमेज करते हैं, राइट. सो उनका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है इफ यू नो यू कीप कंज्यूमिंग ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. तो उसके अगेंस्ट में आप घर के अंदर कैसे यू नो अच्छे ड्रिंक्स बना सकते हो, राइट. चाहे आप वो लाइम जूस को लेके करो, कोकोनट वाटर को करो, बटर मिल्क को लेके करो, एक्सेट्रा. सम ऑफ दीज थिंग्स आर सो न्यूट्रिशियस, राइट, बट वी हैव टू फिगर आउट वेज टू प्रेजेंट देम in our at least बच्चों के लिए तो प्रेजेंटेबिलिटी ओनली मैटर्स, क्योंकि उनको अगर एक कोक दिखता है और एक थम्स अप दिखता है और एक स्प्राइट दिखता है और एक लिम्का दिखता है, तो उनको लगता है कि यार ये चाहिए मुझे, क्योंकि एक तो वो प्रॉपर कोल्ड एनर्जी ड्रिंक लगती है जो कि लगती है कि बहुत एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, बट शायद वो एनर्जी प्रोवाइड से ज्यादा वो शुगर इनटेक बढ़ा रही है आपके. मे बी वो शुगर रश के चक्कर में कुछ ज्यादा ही शुगर रश हो रहा है, which is creating a lot of problems. बिल्कुल. I mean that is a topic in itself, and I am telling you कि मैं अगर if you start हूँ तो you know we are basically you know digging our own grave when it comes to some of these products and categories, right? And उसके अंदर यही है कि ये एक attrition का battle है. देखिए there are enough number of role models which are talking and selling those categories. Where is the role model who is selling buttermilk and coconut water and नींबू पानी, right? हाँ, ये सोचने वाली बात है कि कोई रोल मॉडल नहीं है. क्यों नहीं बेच रहा? मतलब ब्रांड एंडोर्समेंट कोई नारियल का पानी क्यों नहीं एंडोर्स कर रहा? राइट, क्योंकि शायद उसके अंदर जब आप पैकेज फूड करके करेंगे तो शायद उतना मार्जिन ना हो बनाने के लिए, राइट. तो आई थिंक समवेयर ये कि ये जो रोल मॉडलिंग नहीं है ऑन सम ऑफ दिस स्टफ, राइट, वेयर एज रोल मॉडलिंग फॉर बेवरेजेस एंड यू नो सम ऑफ दिस प्रोडक्ट्स इज आउट देयर. सो दिस इज अ बैटल विच एवरी पेरेंट हैज टू गो थ्रू. आई थिंक यहाँ पर एंड वी कीप डिस्कसिंग अबाउट इट इंटरनली अलॉट. आई थिंक वन कोर्स जो मैंडेटरी होना चाहिए हर स्कूल में, राइट, शुड बी अबाउट न्यूट्रिशन, राइट. आप ये सोचिए एक तरीके से कि खाना and food and what you're putting inside your body is so fundamental, correct, right? And what is the education which we are doing in schools around that topic, right? I mean I would say hardly anything, right? तो हम उनको you know complicated topics सिखाते हैं, right, उनका माइंड को ओपन अप करने के लिए. फॉर श्योर वो करना चाहिए, लेकिन जो वो रोज खा रहे हैं उसके ऊपर अगर हम बच्चों के अंदर एक जागरूकता, एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, राइट, द चेंज कैन हैपन फ्रॉम देयर, राइट. एंड देन इट विल नॉट फील लाइक फोर्स्ड कि यार पेरेंट्स बोल रहे हैं, राइट. अब पेरेंट्स अगर रोज बोलते हैं तो लगता है कि रेजिस्टेंस है, कंट्रोल करना चाह रहा है, हाँ, कोई कंट्रोल करना चाह रहा है. बट अगर वो नीचे से अपने आप स्टार्ट होती है, राइट, एज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, आई थिंक देयर कैन बी अ फंडामेंटल चेंज. व्हाट कैन चिल्ड्रन डू to take care of their parents' nutrition, or what is probably an early sign of the parents' nutrition being undernutrition? मैं एक बड़ा सिंपल इमोशनल पॉइंट है, लेकिन जब आप कभी अपने पेरेंट्स को कॉल करें, अगर आप उनके साथ नहीं रहते हैं और कभी कॉल करें और अगर आप पूछें अपने पेरेंट्स से कि कैसे हो, तो क्या जवाब मिलता है? ठीक है बेटा, राइट. बस उसके पीछे की भावना को समझना है कि वो ठीक है कि नहीं है, राइट. बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स पेरेंट्स डोंट शेयर, राइट, कि वो ठीक है कि नहीं है. सो अगर आप ये समझ लें कि यार क्या उनकी एनर्जी में कोई पहले से कमी आ गई है,
क्या वो अक्सर बीमार हो रहे हैं, क्या उनके घुटनों में कभी दर्द होना शुरू हो गया है, राइट, क्या उनका मसल लॉस हो रहा है, क्या वो कुछ चीज़ें भूलना शुरू कर दिया है, क्या वो कभी चिड़चिड़े रहने लग गए हैं. ऑल ऑफ दीज, देयर आर मल्टीपल साइंस एंड सिम्टम्स. और उसके लिए इस लाइन के पीछे जाना पड़ता है कि बेटा मैं ठीक हूँ. What are some of the daily nutrients that parents need Yeah. in their diet, and how can that be easily induced in their diet? Yeah. So I think as they're crossing 50, right, जो डेटा बताता है वो बताता है कि विटामिन B12 हो गया, विटामिन D, आयरन, फाइबर, प्रोटीन, इन सब की कमी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन में देखी गई है, राइट. सो इफ़ यू आर एबल टू फाइंड अ वे टू प्लग सम ऑफ दिस स्टफ, राइट, एंड अगेन हैक्स आर वेरी सिंपल, राइट. जैसे हमने पहले बात करी, प्रोटीन को don't make it like one large meal का part, make it a part of everyday meal through small steps per se. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को पार्ट बनाइए तो वो फाइबर आएगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अच्छे आपको मिल जाएंगे, राइट. वन ऑफ द अदर थिंग्स विच वी हैव फाउंड वेरी अपना इंडिया का खाने का हैबिट के अंदर है, बट स्लोली शायद कम हो रहा है, इज दिस होल थिंग अबाउट जो हम दाल या कुछ भी चीज़ को हम फर्मेंटेशन के लिए रख देते थे, स्प्राउटिंग करते थे, राइट, ओवरनाइट सोक करके रखना. आई थिंक दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द, इट्स अ वेरी स्मॉल हैक, राइट, बट मेरे को ऐसा फीलिंग आ रहा है क्योंकि हम लोग सब इतने बिजी रहते हैं, राइट, लाइफस्टाइल ऐसा बन चुका है कि शायद वो प्रैक्टिस हो नहीं रही है उतनी. तो वो एक ज़रूर वापस सर्कुलेशन में लेकर आएँ, वापस इनकरेज करें, बिकॉज उससे आपका फाइटेट का रिडक्शन, जिससे कि आपको जो भी आप खा रहे हैं उसके अंदर जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन इंप्रूव होती है, प्लस जो खाने के अंदर प्रोटीन है उसकी डाइजेस्टिबिलिटी और आसान हो जाती है. सो दीज आर द स्मॉल हैक्स जो आप इनकरेज कर सकते हैं पेरेंट्स को अपने रेगुलर रूटीन में लाने के. एंड एक प्रॉब्लम मैं बताऊं, मैं बहुत ऑनेस्टली बताना चाहता हूँ, हाँ जी, टिपिकल इंडियन मेल अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करता है. या तो पापाओं को कैसे प्लग किया जाए कि बताओ क्या दिक्कत है? या इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन. नॉर्मली हमारे को इसका जवाब जो मिला है, जैसे कई हमारे कस्टमर्स ने बताया हमारे को कि भाई मेरे हस्बैंड को मैं बोलती हूँ कि मल्टीविटामिन की टैबलेट ले लो, वो कहते हैं अरे मेरे को क्या ज़रूरत है अभी, राइट. सो दैट इज़ वेयर द आइडिया ऑफ स्मगलिंग न्यूट्रिशन. सो द सेम छुपा दो. तो सेम लेडी ने जो हमको बताया कि वो सुबह वो स्मूदी पीते थे, तो मैंने स्मूदी में डालना शुरू कर दिया हेल्दी 50+, एंड अब वो ले रहे हैं एंड उनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है पहले से. सो यू विल हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल, राइट. मतलब हर पर्सनालिटी के लोग होंगे, कई लोग होंगे जो अवेयर होंगे, वो इजी सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, कई लोग होंगे जो कि अनअवेयर हैं, तो उनको बताया जाए तो वो जागरूकता आती है एंड दे आर ओपन टू इम्प्लीमेंट समथिंग, एंड देयर विल बी सम पीपल हु विल बी क्लोज टू दीज आइडियाज, राइट. सो I think we have to find different solutions for different people, right? But this idea of smuggling can actually help solve for all three. But simple है ना, मतलब क्योंकि पाउडर है, तो सैशे खोला, पाउडर निकाला, आटा में स्मगल कर दिया, या कुछ भी डाला, सब्जियों में डाल दिया. बहुत इजी है क्योंकि टेस्ट भी बदल नहीं रहा, कुछ भी बदल नहीं रहा. वेरी इंटरेस्टिंग है. आई थिंक दिस कॉम्पोजिशन ऑफ probably this aspect of your brand probably differentiates you from other nutrition brands out there, and I think fair to say you've done a good job on that. Amar, that was pretty interesting. I think जो हमने अभी तक डिस्कस किया है essentially about parents' health and what children can do, and I think my take on a typical Indian mother, I think that stands out really well in my head. But just to sort of summarize the entire discussion and towards the fag end of the conversation, what are some of the things that can be adopted by the family together? Because ऐसा नहीं है कि मैं एज अ चाइल्ड नज कर दूं पेरेंट्स को कि आप ये खाओ और ऑन द साइड मैं कुछ अलग ही कचरा खा रहा हूँ. तो कैन देयर बी अ फैमिली रेजिम जहाँ पे मैं साथ में कुछ चीजें करूँ? सो व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट कैन बी अडॉप्टेड बाय द एंटायर फैमिली टुगेदर? No, it's a great point, right? I actually, no, it's almost like a mindset more than anything else, right? So as a family, if you adopt this, that healthy eating and is a mindset, right? It changes a lot of things, right? And I think that as a kid, what you can do for your parent is, and I always say, right? If you measure something, you know what to improve, right? If you don't measure anything, then you don't know what to improve, right?
तो It's at like, least- sorry, मैं cut कर रहा हूँ. It's हाँ. like me not seeing my weight yeah at the gym Yeah. and constantly working out. yeah it's like think about it right, गाड़ी चला रहे हो लेकिन फ्यूल मीटर चलता नहीं है, तो आपको क्या पता चलेगा कब पेट्रोल डालना नहीं डालना, सही बात है, right? सही बात है. So it's almost like that, right? So if so the first thing as kids what we should do for our parents and encourage them is to do regular blood test done, right? At least once in 6 months per se, और कैलेंडराइज कर दो यार, you know, हाँ, हमारी simple लाइफ है. ही सारी कैलेंडराइज्ड है, Correct. तो ये चीज़ अपने कैलेंडर में डाल दो ताकि कोई आ जाए और यू नो वो टेस्ट हो जाए, राइट? बिकॉज अगर आप मेजर करोगे प्रोएक्टिवली तो आपको पता चलेगा कि क्या डेफिशिएंसीज हैं, वेयर इज इंटरवेंशन रिक्वायर्ड पर से. सो दैट इज़ वन थिंग आई वुड लव टू यू नो सी हैपनिंग अ लॉट मोर. द सेकेंड फ्रॉम अ माइंडसेट पर्सपेक्टिव कुड बी दैट हमारे पास हमेशा एक सवाल आता है, राइट, कि जब भी कोई ऐसा स्पेशल ओकेजन आया है तो व्हाट टू गिफ्ट, right? Always try to think that if you gift something, how does it impact their health, right? So maybe the best way of showing that you care for the person is by not giving them, you know, clothes or jewelry or this and that, right? Maybe वो भी दे दो यार, वो भी दे दो एडिशन में. कोई हाँ. प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या कोई ऐसा गिफ्ट हो जो उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करता है, वो आपका एक प्राइमरी मोटिवेशन हो, राइट? तो मे बी इट इज़ अ जिम मेंबरशिप इफ इट इज़ रेलिवेंट, इट इज़ अ फिटनेस ट्रैकर, इट इज़ अ न्यूट्रिशन सर्विस का सब्सक्रिप्शन कर दो, राइट? और वट यू नो वट एवर यू फील इज रेलिवेंट, राइट, इन्वेस्ट इन दैट. बिकॉज ये एक इट्स ऑलमोस्ट लाइक गेटिंग इन टू अ रिलेशनशिप with somebody, right? You know, when you woo a girl and you know you are in a dating period and you know get married and etc., it's a constant nurturing, right? It is exactly the same thing here, you know, with your parents. When you're taking care of their health, it is constant nurturing. एक बार बोलने से नहीं होएगा, right? Constant nurture करते रहना पड़ेगा. पीरियड शुड रिमेन, कि Yes. ऐसा नहीं हो कि हनीमून पीरियड में मेरे को बता दिया गया कि मैं तो मतलब बहुत ही बढ़िया आदमी हूँ, Yeah, और जब आप चले गए घुस गए रिलेशनशिप में yeah, तो कचरा आदमी हूँ. ऐसा नहीं होना चाहिए. आई बिल्कुल, थिंक बिल्कुल, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. yeah. And I think the main thing which happens is that the joy of seeing your parents age healthily, Gracefully. right, and gracefully and independently, right, is the greatest gift which you can give to them, as well as the greatest gift which you can receive as a kid. So nurture that. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तू में होनी चाहिए. बिल्कुल. That keeps the spark alive, that keeps Yes. the relationship alive as well. Yeah. But yeah, thank you so much, Amar, for being a part of the show. I think it was pretty interesting to have a very detailed chat about nutrition, not making it too technical, but not dumbing it down as well to absolute nothing. But I think the conversation needed a space to flourish, and that's where you came in. So thank you so much for your thoughts. What are your thoughts, raw, honest thoughts of being on the show on this camera? Bata do. Yeah. No, so I really like the format. I think the honesty with which we have approached this conversation and the platform really offers me the chance to share the journey, share the thinking, also use it as a platform to provoke people, right? Most importantly, देखिए, you know, health is paramount, right? And nutrition is the cornerstone of that, right? So if you are able to positively influence the mindset of a few of you, right, I think we would both consider that it was a successful Correct. episode for us. Absolutely. Right? That's what we're trying to do. Beautiful. Thank you so much, Aman, for being a part of the show. To the audience watching, thank you so much for watching. Please put down your most favorite part from the episode in the comments so that we know what's working. We have a second channel called Deepak Parekh Clips, where we post short snippets from the main episode on that channel. So you'll find it somewhere here or here in the screen. Go check that out, tap on it, subscribe. I'm also going to link Good Monk's channel and their website in the description. Go check them out. और आई थिंक मेरे को सीक्रेटली अमर ने प्रॉमिस किया कि वो लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं मेरे को. ऐसा उन्होंने बोला है. तो हाँ, आपको भी चाहिए तो प्लीज चेक दैट आउट. इफ देयर इज अ कूपन कोड दैट आई हैव फॉर अ स्पेशल डिस्काउंट, you might find it in the description. Check that out. But yeah, thank you so much for watching. Stay tuned for a fresh new episode. Same time next week, Friday 6 p.m. Till then, it's a wrap. Thank you so much for watching. Cheers.